Last lecture we have started differentiation chapter, the most important chapter, and question number 1 of exercise number 1.1 have been completed. So now let us start question number 2. Differentiate the following with respect to x. It is first number example, cos x square plus a square. First convert into differentiate. Right here is let y is equal to, function is equal to cos x square plus a square. Then differentiation of this, differentiate with respect to x. Y differentiation is dy by dx. Then derivatives of all these derivatives of cos x, x square plus a square. So is equal to derivatives of cos minus sin x square plus a square, because cos derivatives is minus sin. But here is, this is again derivatives of this bracket, derivatives of x square plus a square. So right here is minus sin x square plus a square, derivatives of x square 2x, and derivatives of a square is constant term. यहाँ पे x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा. सो इज इक्वल टू माइनस, हियर इज 2x sin x square plus a square. So dy by dx is equal to minus 2x sin x square plus a square. This is the first number example. Similarly, second number. Second number, let y is equal to in square root e raised to 3x plus 2 plus 5. So again, right here is differentiate with respect to x. So यहाँ पे क्या होगा, dy by dx, derivatives of this all bracket e raised to 3x plus 2 plus 5 का डेरिवेटिव होगा. रूट का डेरिवेटिव, यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x. सो यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, बट x के जगह क्या है, 3 e raised to 3x plus 2 plus 5. अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस all fx. So यहाँ पे e raised to 3x plus 2 plus 5. Right here is 1 upon in square root e raised to 3x plus 2 plus 5. Derivatives of e raised to x ही होता है. So e raised to 3x plus 2, but again derivatives of this 3x plus 2. एंड ये 5 का डेरिवेटिव होता है 0, हो जाने दो. सो हियर इज, राइट हियर इज 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट e raised to 3x plus 2 plus 5 e raised to 3x plus 2. 3x का डेरिवेटिव होता है 3 एंड 2 का डेरिवेटिव 0. सो फाइनल आंसर 3 e raised to 3x plus 2 upon 2 in square root e raised to 3x plus 2 plus 5. So dy by dx is equal to the second number example. Now next, third number example. Third number, let y is equal to log of tan
x by 2 bracket complete. So again right here is differentiate with respect to x. So यहाँ पे क्या होगा, dy by dx and derivatives of log 10x x by 2. तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स. लॉग का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन एक्स. एक्स यानी दिस पार्ट एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स. सो tan x बाय 2. बट ये एफ एक्स है तो उसका अगेन डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. एक्स होता तो वहाँ पर ही रुक जाते, बट एफ एक्स है सो tan x बाय 2 is equal to 1 upon tan x by 2 derivatives of tan sec square x by 2. tan का डेरिवेटिव sec square, सो x by 2. x by 2 का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि x by 2 है. सो राइट हियर इज sec square x by 2 upon tan x by 2 एंड डेरिवेटिव से x by 2 होता है, x का 1 होता है डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट 1 अपॉन 2. सो फाइनल dy by dx इज इक्वल टू sec square x by 2 अपॉन 2 tan x by 2. ये फाइनल आंसर. इसका कन्वर्टेशन भी हो सकता है बट इतना ही सॉल्व करना है आपको. देन 4 नंबर क्वेश्चन. 4 नंबर वेरी इजी. Let y is equal to in square root tan root x. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx is equal to 1 upon 2 in square root tan root x. Again derivatives of रूट ऑफ, सॉरी रूट नहीं यहाँ पे आएगा, tan आएगा. tan यहाँ पे tan रूट एक्स आएगा. रूट का डेरिवेटिव फाइंड किया है 1 अपॉन 2 रूट tan रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स यानी tan रूट एक्स. सो यहाँ पे 1 अपॉन 2 tan रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan sec square root x, but again derivatives of root x. So is equal to 1 upon 2 tan root x sec square root x and root x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, यहाँ पे डॉट दे दो, इंटू 2 root x. तो यहाँ पे sec square root x is numerator, 2 into 2 4 root x and in square root tan root x. So dy by dx is equal to फाइनल आंसर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ. क्वेश्चन 2 का 7 नंबर एग्जाम्पल. लेट y is equal to cosec इन ब्रैकेट रूट cos x. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये आपका एफ एक्स है. सो dy बाय dx कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x. कोसेक x मत लिखो, कोसेक इन ब्रैकेट रूट cos x एंड cot रूट cos x, क्योंकि x के जगह क्या है यहाँ पे रूट cos x है. सो कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x cot x. तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, इन स्क्वायर रूट cos x. सो माइनस कोसेक इन स्क्वायर रूट cos x, cot इन स्क्वायर रूट cos x, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है, रूट ऑफ cos x. अगेन नेक्स्ट स्टेप, कोसेक रूट ऑफ cos x, cot
रूट ऑफ कॉस एक्स एंड रूट का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट ये रूट है, सो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है. नेक्स्ट इज माइनस कोसेक एक्स इन स्क्वायर रूट कॉस एक्स, cot in square root cot x and 1/2 रूट cos x एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. अब यहाँ पे आपको प्रॉपरली, ये तो फाइनल आंसर है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक, यहाँ पे x नहीं है, कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा इन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो ये प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. y इज इक्वल टू दिया होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो कोसेक है उसका डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉस एक्स, अगेन डेरिवेटिव रूट कॉस एक्स का, रूट का डेरिवेटिव होने के बाद कॉस का डेरिवेटिव एंड देन एडजस्ट दिस आंसर. ओके, नेक्स्ट मैं आपको 14 नंबर एग्जांपल्स ले रहा हूँ. एक 14 नंबर y is equal to sine root of sine root x. First, differentiate with respect to x, dy by dx sine, first derivatives of पूरा ब्रैकेट डेरिवेटिव साइन रूट ऑफ साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव. तो पहला डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन डेरिवेटिव इज कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, बट ये एफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स. सो कॉस, यहाँ पे कॉस वैसे ही रूट ऑफ साइन रूट एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ रूट, बिकॉज पहले क्या है, रूट है, फर्स्ट इज रूट, सो 1/2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी साइन रूट एक्स. जब तक सॉल्व नहीं था वह तब तक सॉल्व करना है. कॉस साइन रूट एक्स अपॉन ये 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू साइन का कॉस होता है, कॉस रूट एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये कॉस का एंगल है, कॉस का एंगल है, तो कैंसिल नहीं होगा. सो कॉस इन ब्रैकेट रूट साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपॉन 2 साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स, जैसे है वैसे लिखना है, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, या आगे लेंगे तो भी चलेगा. दिस इज dy बाय डी एक्स, यह आपका फाइनल आंसर होता है. यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट साइन दिया है, फर्स्ट साइन का डेरिवेटिव कॉस किया, देन रूट का डेरिवेटिव किया, देन साइन का डेरिवेटिव और उसके बाद में रूट का डेरिवेटिव एंड देन अपने को जैसे लगता है वैसे एडजस्ट करके फाइनल आंसर लिखना है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वन मोर एग्जाम्पल, मैं अभी 15 नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि वो लॉग रिलेटेड है. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
sec e raised to x square ब्रैकेट। डोंट वरी, आपको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले बाइट हो गए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग का क्या होता है 1 अपॉन x, बट यहाँ पे fx है तो ये sec e रेज्ड टू x स्क्वेयर लिखना है। अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ fx मीन्स ये पार्ट sec e रेज्ड टू x स्क्वेयर ये है। फिर 1 अपॉन sec e x स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव जो है sec का sec x यानी sec e रेज्ड टू x स्क्वेयर, tan x tan e रेज्ड टू x स्क्वेयर, क्योंकि sec का डेरिवेटिव sec x tan x है, बट x की जगह क्या है e x स्क्वेयर, सो ये अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे e रेज्ड टू x स्क्वेयर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका, ये sec e रेज्ड टू x ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह गया है tan e रेज्ड टू x स्क्वेयर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये इसका डेरिवेटिव क्या है e रेज्ड टू x स्क्वेयर का e रेज्ड टू x स्क्वेयर होगा, बट यहाँ पे fx क्या है x स्क्वेयर है, सो x होता तो रुक जाते, बट x स्क्वेयर है, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर है। सो tan e रेज्ड टू x स्क्वेयर e रेज्ड टू x स्क्वेयर, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, बस हो गया। सो dy बाई dx हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये 2x लेंगे e रेज्ड टू x स्क्वेयर, देन tan e रेज्ड टू x स्क्वेयर, ये 15 नंबर एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 के थे। अच्छी तरह से रिवाइज करना है। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, जो भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके चाहिए, वो मैं वीडियो करके आपको भेज सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। वो भी सेम ही है, खाली वहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स अलग तरीके से है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 प्लस in bracket x cube minus 5x minus 2 raised to 4. So right here is differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to, here is raised to 3, this bracket first is x raised to 3 x cube, so first 3 in bracket x square plus 4x plus 1 square, again write derivatives of fx means this bracket x square 4x plus 1 plus this 4 x cube minus 5x minus 2 raised to 3, because 4 minus 1 is 3, again derivatives of x cube minus 5x minus 2. So then next part is 3 x square plus 4x plus 1 square, derivatives of x square 2x, derivatives of 4x 4, derivatives of 1 0, plus 4 x cube minus 5x minus 2 cube, x cube derivative is 3x square minus 5x derivative is 5 and this 0. So dy by dx is equal to this, dy by dx. So this is a dy by dx. First solve this bracket. This is fx cube means x cube derivative is 3x square, but here is x square plus 4x plus 1, again derivatives of x square plus 4x plus 1
and next plus 4x raised to 4 derivative is 4x cube, but here is this bracket, again derivatives of this bracket, and then final answer. Question number 3, example number 1. Now example number 3rd. y is equal to x upon in square root 7 minus 3x. Differentiate with respect to x, dy by dx is equal to, this is u upon v, property of u upon v, derivatives of u upon v is equal to v derivatives of u minus u derivatives of v अपॉन v स्क्वायर. ये प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे, दिस इज u एंड v. तो यहाँ पे फर्स्ट राइट v derivatives of u minus u means x, u means x, derivatives of root of 7 minus 3x upon 7 minus 3x स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है v स्क्वेयर है. देन इज इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट 7 minus 3x, derivatives of x is 1 minus x, derivatives of root 1 upon 2 root 7 minus 3x, but again derivatives of 7 minus 3x upon square root का square always 7 minus 3x हो जाएगा. Then right here is in square root 7 minus 3x minus x upon 2 in square root 7 minus 3x. यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होगा इसका, 7 का 0 माइनस 3x का माइनस 3. सो dy by dx is equal to in square root minus 3x minus minus plus 3x upon 2 in square root. यहाँ पे इतना भी आंसर रख सकते हैं, या आप लोग ये आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना भी आंसर आप रख सकते हो, डोंट वरी. नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. y is equal to in square root cos x plus in square root cos root x. Differentiate with respect to x, dy by dx is equal to root x का 1 upon 2 root, बट यहाँ पे cos x है, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ cos x प्लस यहाँ पे 1 upon 2 root of cos root x, again derivatives of cos root x is equal to 1 upon 2 root cos x. Cos x का derivatives minus sin x plus 1 upon 2 root of cos root x and derivatives of यहाँ पे क्या होगा minus sin root x, but again derivatives of रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. सो इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा बिकॉज साइन रूट एक्स अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स, एंड रूट एक्स का आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स
cos root x. This is the final answer, dy by dx. ये इस तरीके से आपको सब एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं. ओके, ये सब एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी. आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, या कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका वो सॉल्व करके मैं आपको भेज सकता हूँ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है कि एक टेबल यहाँ पे दिया गया है. x, fx, gx, f डैश x, g डैश x, ये आपको टेबल दिया है. यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, 4 है एंड 6 है. जब 2 है x का वैल्यू तो fx इज 1, 4 है तो 3 एंड 5. gx क्या होगा? 6, 4, 2 एंड देन यहाँ पे क्या होगा? -3, 5, 4, -4, g डैश x, 4, -6, 7. ये आपको टेबल दिए गए हैं. इस टेबल के ऊपर आपको ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, आपको दिया गया है इफ Rx is equal to f of gx, find R derivatives of R2. तो ये फाइंड करना है आपको. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन Rx is equal to f of gx. ओके, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव्स r डेरिवेटिव्स x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव्स f डैश gx होगा, बट ये ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव्स होता है, सो उसका डेरिवेटिव्स है g डैश x, gx का डेरिवेटिव्स होता है g डैश x. देन सब्स्टिट्यूट आपको फाइंड क्या करना है? x का वैल्यू 2, ये फाइंड करना है. सो सब्स्टिट्यूट x g2, x का वैल्यू क्या है? 2 है, यहाँ पे g डैश 2. अभी आपको यहाँ पे देखना है टेबल में इज इक्वल टू f डैश वैसे रखना है. g2 का वैल्यू क्या है? g2 जब x का वैल्यू 2 है और g कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखना है. देन g डैश 2, g डेरिवेटिव्स 2 g डैश x कितना है? 4 है, सो यहाँ पे डॉट 4 इज इक्वल टू आपको क्या करना है? f डैश 6, x का वैल्यू 6 है और f डैश तब कितना है? -4 इंटू 4, यानी -4 इंटू 4 इज इक्वल टू -16. सो r, 2 इज इक्वल टू -16. फिर से एक बार मैं बताता हूँ, टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे Rx आपको दिया गया एग्जाम्पल है, दिया गया एग्जाम्पल Rx इज इक्वल टू f ऑफ gx, फाइंड R डेरिवेटिव्स ऑफ 2. Rx इज इक्वल टू f. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, if Rx is equal to g in bracket 3 plus fx, find R derivatives for R dash 4. So यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है? फर्स्ट लिखना है Rx is equal to g in bracket 3 plus fx लिखना है. देन डेरिवेटिव्स ऑफ r complement x, derivatives of r with respect to x, g dash 3 plus fx
अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ मीन्स किसका डेरिवेटिव्स ऑफ 3 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जी डैश 3 प्लस एफ एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, बट एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, 3 का 0। देन आर कॉम्प्लीमेंट, आर डेरिवेटिव्स 4, तो 4 यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 प्लस एफ ऑफ 4, और यहाँ पे एफ डैश 4। अभी यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 3 प्लस एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 यानी ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ 4, एफ एक्स का 4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3। देन नेक्स्ट एफ डैश 4, तो एफ डैश 4, एफ डैश यहाँ पे देखो एफ डैश 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 5। एफ डैश 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 लिखना है। देन जी डैश 6 इंटू 5। अभी जी डैश 6, जी डैश उसका कितना, एक्स का वैल्यू 6 कितना होता है, 7। सो राइट हियर इज 7। सो 7 इंटू 5, so r derivatives of r is equal to 7 5s are 35, so final answer 35। so इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे यू हैव गिवन आर एक्स इज इक्वल टू जी 3 प्लस एफ एक्स। तो हम लोग ने एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव इसका जी का डेरिवेटिव जी डैश इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट 3 प्लस एफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 3 प्लस एफ एक्स। फिर ये डेरिवेटिव वैसे लिखा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो नहीं लिखना है। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। देन यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, क्वेश्चन में 4 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिया। 4 लेने के बाद जी डैश 3 प्लस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है, एफ डैश एक्स, एफ डैश 4। अभी जी डैश 3 है, वैसे ही एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 यानी एफ ऑफ एक्स में 4 का वैल्यू 3 होता है, 4 का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। एफ डैश 4 यानी एफ डैश एक्स में 4 का वैल्यू कितना होता है, 5, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 5। जी डैश 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस इंटू 5, ये 5। जी डैश 6, जी डैश में देखना है, जी डैश में देखना है 6 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने 7 लिख दिया। 7 5s are 35, सो फाइनल आंसर इज 35। इस तरीके से आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे है, एस एक्स इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट जी एक्स, फाइंड एस डेरिवेटिव 6 होगा, तब एस का डेरिवेटिव। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है एस एक्स जी ऑफ जी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव जी ऑफ डैश जी एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। जी एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे लिखता हूँ, जी डैश जी एक्स
ये तो है ही, वैसे ही लिखना है। इसका रेडियस जी डैश एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कितना है 6 करना है, कितना है 6, तो x का वैल्यूज यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करना है। जी ऑफ 6, यहाँ पे देखो जी ऑफ 6, देन जी डैश 6। अभी जी ऑफ 6 कितना है यहाँ पे आगे ही करता हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज़ भी मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ, वैल्यूज़ है फर्स्ट यहाँ पे जी डैश, जी ऑफ 6, जी ऑफ 6, जी का 6 होगा तो वैल्यू कितना होता है 2, वैल्यू 2 लिखा। उसके बाद जी डैश 6, जी डैश 6, जी डैश 6 का वैल्यू होता है 7, तो यहाँ पे कितना लिखना है 7। नेक्स्ट जी डैश 2, जी डैश 2 का वैल्यू होता है 4, तो यहाँ पे कितना लिखना है 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 होता है 28, सो एच डैश 6 इज इक्वल टू 28। ये आपका फाइनल आंसर। ऐसे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो ये सब आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। सो ये आप सब एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनी डाउट, आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पूछेंगे। तो यहाँ पे